Hello dear students, welcome to NT-UGC NET Paper to Education channel. Today I have come up with one more topic, that is Kothari Education Commission. As you can see on the screen, today we are going to learn about this particular topic. It is from chapter number 2 of the syllabus, which includes history, politics and economics of education. In the earlier session we have already completed Secondary Education Commission, and today we are going to learn about the Kothari Education Commission, which came into existence in the year 1964 and 66, that is between 64 and 66. So without further ado, let us start with the topic. Kothari Education Commission. As you could see on the screen that it came into existence in the year 1964 and 66. Kothari Commission is popularly known as National Education Commission, as you can see over here. Second point says that it was an ad hoc commission established by Indian government for revolutionizing the then existing setup of Indian education. ये कहना चाहता है कि वो एक ad hoc कमीशन लाया गया था, क्योंकि इसके पहले के जो कमीशन आ गए थे, एज वी हैव सीन, मुदालिर कमीशन हो गया, या फिर ऐसी जो पॉलिसीज़ आई थी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट जब करी गई तो उसका इफ़ेक्टिव रिजल्ट नहीं आ पाया. सो अल्टीमेटली एक नई कमेटी को बिठाना पड़ा. दैट इज़ नन अनदर देन कोठारी कमीशन. अब ये कोठारी कमीशन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं, and you won't believe that the recommendation and suggestions given under this particular commission had actually helped another committees when they form for more improvisation of the education system. And Kothari Education Commission is one such which helped a lot to another educationists too in framing of education commission. Then after you can say when this particular commission came into existence. The third point, it was formed on 14th of July 1964, and this particular committee began its work on 2nd of October 1964 and submitted the final report on 29th June 1966. The report, the Kothari Commission's report, contained total 19 chapters aiming at holistic development of the children in the education setup. Now here when we are talking about the holistic development, it includes physical, mental, social, emotional, cultural and so on. Most important for your NET examination, the tagline of Kothari Commission was Education and National Development. ये एक मार्क में पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में. Its chairmanship was carried out under the guidance of D.S. Kothari, the then chairman of the University's Grant Commission. UGC के जो चेयरमैन थे उस टाइम के 1964 to 66 के दौरान, वो थे डॉक्टर D.S. Kothari. His name is Daulat Singh Kothari. He was actually leading this particular commission. Under his guidance and support, Kothari Commission came into existence. Now, most important for examination, the Kothari Commission's final report had 4 subsections. जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कराई थी उसके 4 पर्टिकुलर डिवीजन थे. सेक्शन 1 में लिखा है जनरल इश्यूज़ के बारे में बोला गया है. देन सेकेंड डिवीजन में स्टेजेस ऑफ एजुकेशन कैसे होने चाहिए, जैसे कि 1 to 5th स्टैंडर्ड तक क्या कहेंगे, फिर 6 to 8th के लिए क्या कहेंगे, 6 to 10th के लिए क्या कहेंगे, 11th and 12th को क्या नाम दिया जाएगा, देन कॉलेज की ईयर्स को क्या नाम दिया जाएगा. सो ऑल दोज रिकमेंडेशंस वर अंडर डिवीजन सेकेंड. देन डिवीजन 3 और सेक्शन 3, उसमें रिकमेंडेशन एंड प्रोग्राम्स दिए गए हैं कि स्कूल कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की स्कूल्स में कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एंड ऑल. एंड जो डिवीजन 4 है उसमें एडिशनल पेपर्स के बारे में बोला गया है. देन आफ्टर द कमीशन फॉलोड 4 मेन थीम्स. अब कोठारी कमीशन में 4 बेसिक थीम के बारे में भी बोला गया है, या फिर कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दी है. दिस पर्टिकुलर कमीशन came into existence by having a focus upon these 4 themes. Number 1 is increase in productivity of students, promoting social and national integration feeding among the students, education and modernization, and developing social, moral and spiritual values among the students so that they could become a responsible citizen of the nation. Then major recommendation, this is the most important one for your examination. Major recommendations में क्या लिखा गया है? See, the very first point, the standardization of education system on 10+2+3 pattern across the country was laid out under this particular commission.
कोठारी कमीशन में बोला गया है कि एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड कर दो 10+2+3 के पैटर्न में, मतलब 1 to 10 स्टैंडर्ड, फिर 11 and 12 दैट इज +2, और 3 मतलब कि ग्रेजुएशन के कॉलेज के 3 साल, दैट इज 10+2+3 पैटर्न। और जो कि हमने अभी तक जो पढ़ाई की है वो इसी पैटर्न से पूरे इंडिया में चलती आ रही है जब तक कि न्यू NEP 2020 लागू ना हो जाए। Second recommendation, the committee advised that the pre-primary education with different names such as kindergarten, Montessori and pre-basic should be named as pre-primary, and primary education should be renamed as lower primary up to 4th standard। मतलब कि जो कि आप पढ़ा रहे हो या प्री प्राइमरी हो गया तो उसको एक पर्टिकुलर, जो मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन है, उनको एक प्रॉपर नाम दे दो, एंड दैट टू अप टू 4th स्टैंडर्ड, एंड इट शुड बी कॉल्ड एज लोअर प्राइमरी। देन आफ्टर द सेकेंड पॉइंट talks that the days of instruction were recommended to be increased to 234 for schools and 216 for college। यानी कि जो रेगुलर स्कूल डेज है या कॉलेज डेज है वो कितने होने चाहिए, तो स्कूल के लिए 234 एंड कॉलेजेस के लिए 216, एंड द वर्किंग आवर्स टू बी फिक्स्ड एट नॉट लेस देन 1000 आवर्स पर एकेडमिक ईयर। एक साल में 1000 आवर्स से ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, प्रेफरेबली हायर एट 1100 और 1200 आवर्स, मतलब 1000 आवर्स से कम नहीं, सॉरी, नॉट लेस देन 1000 आवर्स एक साल में, उससे कम नहीं पढ़ाना है, और 1100 या 1200 प्रेफरेबली हायर हो सकता है, आप इतने लगा सकते हो। देन इट ऑल्सो एडवाइज फॉर रिडक्शन ऑफ नेशनल हॉलीडेज, लिंक द कॉलेजेस टू अ नंबर ऑफ नेबरहुड स्कूल्स। ऐसा रेकमेंड किया है कि जो नेशनल हॉलीडेज उसको थोड़ा कम कर दो और कॉलेजेस जो है वो स्कूल्स के आसपास बनाओ, सो दैट व्हाट विल हैपन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्कूल्स द स्टूडेंट्स कैन गो टू द कॉलेज एंड परस्यू देयर हायर एजुकेशन। देन another recommendation it has given is that utilization of school facilities, so that what will happen, and that too for 8 hours a day all through the year। तो इस वजह से स्कूल के घंटे 8 होते हैं नॉर्मली। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुक बैंक्स, दैट इज़ लाइब्रेरी बनानी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट्स एंड प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप, अगर कोई बच्चा बहुत होशियार है लेकिन ही इज़ लैकिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स, तो प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप वो भी रख सकते हो स्कूल में। सेटिंग अप ऑफ डे स्टडी एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, सेटिंग अप ऑफ डे स्टडी मतलब कि डे स्कूल आप कॉन्सेप्ट ला सकते हो या फिर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ आप ले आओ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। रेजिडेंशियल फैसिलिटी मतलब कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन। देन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू अर्न वाइल स्टडिंग, वो भी आप दे सकते हो। कोठारी कमीशन ऑल्सो एम्फोसाइज ऑन फ्री एजुकेशन अप टू एंड इंक्लूडिंग लोअर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की भी बात की गई है। कमीशन हैड लेड आउट स्ट्रेस ऑन विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट की बात की है। इट एडवाइज सेटिंग अप ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटीज़ फॉर ओवरसीइंग विमेन एजुकेशन। स्टेट गवर्नमेंट या ऐसी कमेटी बनाओ, सेंट्रल लेवल की कमेटी बनाओ जहाँ पे विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। Then it suggested establishing schools and hostels for women and urged to identify ways to find job opportunity for women in the education sector, which indicates कि विमेन एजुकेशन के साथ साथ ऐसी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, या सीट्स जैसे कि अभी हो रहा है रिजर्व सीट्स होती है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। द सेम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन वाज गिवन अंडर दिस पर्टिकुलर कमीशंस रिकमेंडेशन, सो दैट व्हाट विल हैपन कि स्कूल्स या हॉस्टल्स में विमेन के लिए वो सीट्स आप रिजर्व करोगे, तो दैट विल बी एंड one further step towards women empowerment and women education, so that should also be done। Then focusing on equalization of opportunities to all respective of caste हो गया, creed हो गया, religion हो गया, gender हो गया, to achieve social and national integration, जो कि हर स्कूल में या हर इंस्टीट्यूशन में आपको देखने को मिल जाएगा। The feeling of secularism basically should be there। Then after, the school were advised to provide education to backward classes on priority basis, and minimum level of enrollment at the secondary level were advised to be not less than 360 every year। This is also you can say to have equalization of opportunities for all। So कोई financially weak है या फिर backward class in a way कि not only financial way पर कोई ना कोई रीज़न से वो पढ़ने नहीं आ पा रहा है, तो स्कूल को एडवाइस किया गया है कि उन लोगों के लिए भी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करो।
Two sets of curricula were prescribed, one at a state level and one at a national level, and the schools were recommended to experiment with the curriculum. मतलब कि कुछ नए नए curriculum में changes लाओ या फिर उस तरीके से पढ़ाओ so that we could cater the needs of the children in the school or even at the education institution. वो national level के या state level के curriculum में थोड़े changes आप कर सकते हो in that way. So state level का curriculum आप देखोगे थोड़ा अलग रहता है स्टेट स्कूल्स में नेशनल लेवल के हिसाब से. तो इन दैट वे सो दैट वेराइटी शुड बी देयर इन द करिकुलम. दैट वाज अ रिकमेंडेशन बाय कोठारी कमीशन. It also proposed that 3 or 4 textbooks should be prescribed for each subject and moral and religious education should be made a part of the curriculum. करिकुलम में मोरल एजुकेशन रिलीजियस एजुकेशन हो गया, उसके साथ साथ 3 से 4 टेक्स्ट बुक हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए. जैसे कि अभी हमारा हो गया एक नोटबुक रहती है, एक वर्कबुक रहती है. सो इन दैट वे. Then most important for your exam once again, what was the prescribed curriculum by Kothari Commission? Then here we can see it included lower primary level which includes standard 1 to 4, यानी कि 1 to 4 standard 1 2 3 4 standard को हम lower primary का नाम देंगे, जो कि हम अभी के जो एजुकेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं अभी तक वो इसी तरीके से चल रहा है. देन लोअर प्राइमरी लेवल में करिकुलम कैसा होगा? तो वन लैंग्वेज दैट इज रीजनल लैंग्वेज पढ़ानी है, मैथमेटिकल स्टडीज तो रखना ही है, एनवायरमेंटल स्टडीज सो दैट द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग अवर एनवायरमेंट. क्रिएटिव स्टडीज आर्ट का क्लास हो गया, ड्राइंग का क्लास हो गया, हेल्थ स्टडीज़ पीटी का क्लास हो गया, वर्क एक्सपीरियंस इन अ वे कोई वोकेशनल कोर्स आपने सिखा दिया या फिर आपने SUPW स्किल्स का क्लास रख दिया इन दैट वे. देन अपर प्राइमरी लेवल दैट इज़ 5 to 8 स्टैंडर्ड, उसको अपर प्राइमरी, 1 to 4 को लोअर प्राइमरी, देन 5 6 7 8 को अपर प्राइमरी. उसमें क्या करिकुलम होना चाहिए? तो 2 लैंग्वेजेस में पढ़ाओ, वन इज़ अ रीजनल लैंग्वेज एंड अनदर वन इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, एंड प्रेफरेबली थर्ड लैंग्वेज भी हो पाए तो. मैथमेटिक्स स्टडीज़ होनी है, साइंस सोशल साइंस स्टडीज़ आप कराओ, सोशल स्टडीज़ कराओ, साइंस होना चाहिए, आर्ट वर्क होना चाहिए, पीटी या फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट रखो, वर्क एक्सपीरियंस का रखो, एंड मोरल स्टडीज़ ऑफ कोर्स. देन लोअर सेकेंडरी लेवल 9th and 10th को बोला गया है. इसमें भी सेम 3 लैंग्वेजेस दैट इज़ एक आपकी रीजनल हो गई, एक नेशनल हो गई और एक थर्ड लैंग्वेज हो गई. देन मैथमेटिकल स्टडी, साइंस स्टडी, सोशल साइंस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड मोरल स्टडीज़. देन अंडर ग्रेजुएशन लेवल जो पहले कहा गया था कोठारी कमीशन के आगे वाले कमीशन में, उसको यहाँ पे बोला गया है प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोलो या हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम 11th and 12th बोलते हैं. इसमें क्या पढ़ाने? तो 2 लैंग्वेजेस, वन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड वन क्लासिकल और फॉरेन लैंग्वेज. क्लासिकल तो आपको पता ही है जो कि एंशियंट रिटन लिटरेचर रहता है, तमिल हो गया, ओडिया हो गया या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज. आपको पता है क्लासिकल लैंग्वेज हमारे आई थिंक 8th शेड्यूल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई है. देन एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम वन एडिशनल लैंग्वेज, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉजिक हो गया, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्ट हो गया, देन फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, इनमें से आप पढ़ा सकते हो. या फिर वो बच्चा ऑप्ट कर सकता है 11th and 12th में. आर्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन इज वे मोर इम्पोर्टेंट इवन एट 11th and 12th स्टैंडर्ड. वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया, मोरल स्टडीज. Then some important other suggestions were also given under Kothari Commission. Which were they? Let's just go through this. The first one is to establish guidance and counseling center. Now see, individual difference is present all across the globe in each and every classroom. So यहाँ पे बोला गया है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर बनाना चाहिए, या फिर हर एक स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर रखो, ताकि हो सकता है इफ़ सम चाइल्ड इज पासिंग थ्रू डिप्रेशन और इज हैविंग हाई एंग्जाइटी, then under the guidance and counseling setup in the school itself the problem of the child could be solved. Then another suggestion was have a new approach in the evaluation of students performance. इसीलिए अभी तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो सब भी ज़्यादा कराई जाती है ताकि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस उभर के बाहर आ पाए. Then have the neighborhood school system without social or religious segregation and a school complex system integrating primary and secondary level of education. मतलब कि नेबरहुड स्कूल सिस्टम इस तरीके के हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल और रिलीजियस सेग्रीगेशन उतना ना हो,
कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है तो दूसरों बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है. ऑल दोस टाइप ऑफ रिजिडिटी शुड नॉट बी देयर. और ऐसा स्कूल सिस्टम बनाओ कि जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन को इंटीग्रेट कर पाओ. देन थर्ड इज स्टेट एंड नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी सेटअप. दैट इज स्टेट स्कूल्स हो गए अपने, या फिर नेशनल बोर्ड के स्कूल्स हो गए. सो दैट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी सेटअप. Then another suggestion to have the Indian Education Service along the lines of Indian Administrative Service. IAS की एग्जामिनेशन भी आप प्रिपरेशन करा सकते हो, या उस तरीके की सिस्टम आप ओपन अप कर सकते हो इंडिया में. दैट वॉज अ सजेशन गिवन बाय कोठारी कमीशन फॉर हैविंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर. फिर उन्होंने रिकमेंडेड किया है कि it recommended standardization and revision of the pay scale of the teaching, non-teaching and administrative staff and prescribed minimum pay scale level based on their location. कोई टीचर या फिर कोई नॉन टीचिंग स्टाफ में बहुत दूर से आ रहा है, या फिर लोकेशन वाइज उनको पे स्केल दिया जाना चाहिए, उनके एजुकेशन मेरिट के हिसाब से उनको पे स्केल दिया जाना चाहिए, रिविजन होना चाहिए पे स्केल का, सैलरी का बेसिकली. सो दैट वाज आल्सो रिकमेंडेड अंडर दिस कमीशन. देन अनदर पॉइंट इज another proposal was also for the establishment of machinery for continuous on-job training of the teaching staff and for efforts to raise the status of the teachers to attract talents into the profession. अभी के सिस्टम में आप देखो तो अभी CPD सिस्टम, दैट इज कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर का होता रहता है. जो इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम रहते हैं टीचर्स के लिए, उनके स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए. से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लिटरेसी है, बेसिक आता है आपको एज अ टीचर, लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो पढ़ाना चाहिए, या मॉडर्न टेक्निक है जैसे कि पेन टैब हो गया या पेन से पढ़ाना हो गया, तो वो सब नहीं आता. तो उसके लिए इन सर्विस प्रोग्राम रखे जाते हैं. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड सिस्टम आ गया है अभी तो हर स्कूल में, हर एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी से पढ़ाना होता है. तो ये CPD का एक पार्ट होता है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का. तो ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब कि जॉब के साथ साथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है इन सब चीज़ों की, सो दैट द टीचर कुड ऑल्सो गेट अपडेटेड विद द ICT और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो इन द टीचिंग प्रोसेस. सो this was also recommended by the Kothari Commission. Then most important for your examination, this particular commission said that laws to be passed to legalize the education standards and the expenditure on education to be raised from, most important है ये, the then level of 2.9% of the GDP to 6% to be achieved by the fiscal year 1985 to 86. मतलब कि पहले जो GDP हमारी आती थी उसमें से 2.9% ही हम एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए स्पेंड करते थे. लेकिन अब कोठारी कमीशन में बोला गया है कि GDP में से 6% एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए आप कंट्रीब्यूट करो. इंडियन गवर्नमेंट को उतना अपने बजट में से 6% एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है उसको डेवलप करने के लिए खर्चा करना करे तो अच्छा है in a way, and that too in the fiscal year 1985 to 86. So that was recommendation, a major recommendation for the development of education system was done by Kothari Commission. फिर यहाँ पे है a significant suggestion was the issuance of national policy on education by government of India. कोठारी कमीशन में ये रेकमेंड किया कि नेशनल पॉलिसी एक ऐसी ले आओ, एंड दैट टू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन से रिलेटेड नेशनल पॉलिसी जो कि ये बताए कि किस तरीके का करिकुलम पूरे कंट्री में होना चाहिए, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड अंडर इट, which should be serve as a guidance for the state government and local bodies in the designing and implementation of their educational plan. एक प्लान होगा तभी तो आप एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली चला पाओगे. तो उस वजह से उसका हैंडलिंग जो है वो कोई एक नेशनल पॉलिसी बनाओ एजुकेशन की जो ये सब कुछ हैंडल करेगा. तो दैट वाज अ रिकमेंडेशन, मेजर रिकमेंडेशन. एंड द लास्ट वन इज, आप देख सकते हो कोठारी कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट अंडर कोठारी कमीशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्प अ लॉट. सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि ये जो सारी रिकमेंडेशंस थी कोठारी कमीशन की, दैट हेल्प अ लॉट. हेल्प होम, देन यू कैन से द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, यानी कि जो राजीव गांधी की मिनिस्ट्री के अंडर जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उस पर्टिकुलर पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए कोठारी कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे, सजेशंस थे, उनको बारीकी के साथ पढ़ा गया,
और उसके ऊपर काम किया गया और फिर वो रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट भी करने का बोला गया है इन NPE 1986. So, dear students, all these were recommendation under the Kothari Commission. So this is all for today's session. Thank you everyone for listening to this particular session silently or clearly. And most important thing, if you really understand from my lessons, then do hit the like button, share this particular video as much as possible so that your friends could also get knowledge about NTA UGC NET paper 2 education examination, and do subscribe to my channel. Till the next session, thank you so much and happy reading.